Good morning, everyone. So today we start a new chapter, role of the government in health. In very important chapter, in your section, you can say, in the class 7th. Okay, so you saw many of the pictures in here. Some are fetching water, and one pic of the hospitals, and one vendors, you can say, one lady who sell the vegetables, and many more there are. Okay, so in we can say in this chapter we learn about the which type of the condition of health in our country, our states, and what is health and what's going on nowadays. You better know about that. If you saw the new channels and the TV, so you better know about nowadays the condition is very horrible in our whole country. Okay, so we start now. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. What is the expectation of the peoples regarding democracy? Means their representative will be take care. Yeah, you can say will be a proper. They have the knowledge of the proper condition of the peoples. They raise their voice related regarding their needs, and what is the expectations of their will be fulfilled by their representatives. Okay, this could be through the provisions of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? So, what is the topic today is, and what is the subtopic? You can say the role of the government. Okay, रोल क्या है गवर्नमेंट का, जिस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारी आशाएं होती हैं उनसे कि वो एजुकेशन पर काम करेंगे, हेल्थ पर काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के लिए सोचेंगे, अगर लोगों के पास घर नहीं है घरों के बारे में काम करेंगे, ठीक है, कुछ नई नीतियां बनाएंगे, नई रोड्स का डेवलपमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुंचाएंगे, इन सब के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल जो अभी की बात है वो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ पर है कि हेल्थ पर क्या काम कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हाट इज हेल्थ? वी कैन थिंक और of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about the disease. ठीक है, isn't only about the disease. You may have associated only some of the situation in the above causes with health. What we often ignore is the fact that each of above situation is related to health. तो ऊपर हमने जो भी देखा वो सब किससे रिलेटेड है? सब हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार फिर से हम ऊपर देख लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, खाना बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ी दिख रही है, पानी भरते हुए लोग दिख रहे हैं, एक बेड, एक हॉस्पिटल के बेड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं कि हेल्थ कंडीशन कैसी है लोगों की। ठीक है, एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक महिला जो है वो सब्जी बेचती हुई दिखाई। तो सब ये सब किस रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, क्या कर रही हैं? पानी भर के ला रही हैं। एक आदमी जो नाई का काम कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि झोपड़ी में रहते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर एक एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हम किससे रिलेट कर रहे हैं? इसको हम रिलेट कर रहे हैं हेल्थ से। ओके, सो नाउ हेल्थ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है या उसको इंजरी से जोड़ा जाए, बल्कि इलनेस और इंजरी से नहीं, बल्कि वो सभी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। नाउ what we often ignore is the fact that each of the above situation is related. Okay, apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. अगर लोगों को अच्छा पानी मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री एरिया में वो रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और अगर पानी क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, पीने लायक नहीं होगा, और इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, दूषित है, चारों ओर धुआं फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग
हेल्दी होंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन द क्रैम्प्ड कंडीशंस दे विल बी प्रोन टू द इलनेस। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि लोगों को अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, बैलेंस डाइट अगर नहीं मिलेगी उनको, तो अब हम कह सकते हैं कि उनकी कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब होगी और वो गरीबी में, या हम कह सकते हैं कि गलत तरीके से जो बीमारी उनको बहुत जल्दी हो जाएगी और वो गलत तरीके से रहने के लिए मजबूर हुए हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन अ गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग। हम जो भी चाहते हैं कि हम एक्टिव रहें, हमसे अच्छा काम हो, ठीक है। इट इज़ंट हेल्दी टू बी डल, inactive and anxious or the scared for the long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life are a part of the health. तो हम सभी चाहते हैं कि एक्टिव रहें, बहुत अच्छा काम करें, बिल्कुल मुरझाए हुए ना रहें, ठीक है। एक्टिव रहें हम, किसी भी जो भी इवेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। बच्चा अगर डल है या फिर बहुत क्लास में भी अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, प्रॉपर खाना वो नहीं खाता है, किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करता, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्या है, इन सब चीज़ों से हो सकता है कि वो किसी डिजीज़ से ग्रसित हो या उसको कुछ बीमारी हो, ठीक है। तो मेंटली भी वो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हम किससे रिलेट करते हैं? ये करते हैं हम हेल्थ से। ओके, सो वी नो अबाउट द हेल्थ, ठीक। नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया, अब जिसकी जो बात होनी है वो है हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत में हेल्थ केयर की सिचुएशन क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप टीवी चैनल्स अगर आप देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में अगर आप देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कंडीशन कितनी ख़राब हो रही है, ठीक है। ये कुछ पुराने डाटाज हो सकते हैं, ठीक है, केवल ये पढ़ने के लिए ठीक है, सुनने के लिए ठीक है, लेकिन जो अभी की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट the situation expressed in the first and second columns. So we have two columns here. तो हम एक एक कॉलम को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, लार्जेस्ट नंबर, ओके, लिसन केयरफुली, इन द वर्ल्ड एंड अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो। सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर हम ही प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे देश में अभी जो सिचुएशन है वह ख़राब किस बात की कि डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं है हमारे पास, ठीक है। नर्सेज की कमी है, डॉक्टर की कमी है, प्रॉपर बेड की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, प्रॉपर मेडिसिन्स की कमी है, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही है। इतने बड़े देश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा, ये पुराना डाटा है, मैंने कहा आपसे जैसे कि, और वो डाटा धीरे धीरे रिमूव अगर होगा भी तो उसमें बढ़ते ही रहेंगे। जिस हिसाब से हर साल डॉक्टर्स जो टेस्ट पास करके आते रहते हैं या फिर बनते रहते हैं, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन द एवरी ईयर। अप्रॉक्स, लगभग, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कितना कहा उन्होंने? अप्रॉक्स दैट इज 30,000 न्यू डॉक्टर्स। उसके बाद भी मैंने कहा कि अभी क्या है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देन हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके, हाउ मेनी? देयर आर इन 1950, द डाटा इज देयर, ये जो डाटा है ये पुराना है कि 1950 में देयर आर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स। इन 2017 नंबर ग्रू टू 23,583 हॉस्पिटल्स। ओके, हेल्थ केयर फैसिलिटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर बात कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे वो डाटा बढ़ते रहा है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट आपने सुने होंगे कि टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन ये मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं? जो लोग इंडिया में आकर के अपना इलाज करवाते हैं, बाहर के देशों से भी, अभी भी पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, ठीक है, और भी भारत के जो पड़ोसी देशों वहाँ से बहुत से लोगों का विश्वास ये है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति या भारत में जो हॉस्पिटैलिटीज़ है या हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फ्रॉम मेनी कंट्रीज दे केम फ्रॉम द ट्रीटमेंट इन द सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द इंडिया दैट कंपेयर विद बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स माने जाते हैं। और हमारे यहाँ का आदमी इलाज कराने कहाँ जाएगा?
बाहरी देशों में जाएगा, अमेरिका जाएगा, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, दोबारा से सुनना, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हम ही करते हैं, प्रोड्यूसर भी हमें, डॉक्टर भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्टर भी हम ही हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से जो भी डॉक्टर बन करके जाएंगे वो विदेशों में जा करके अपनी सेवाएं देंगे। अमेरिका में है, ब्रिटेन में है या यूरोप में है, अधिकतर जो डॉक्टर्स अगर आपको मिलेंगे वो भारतीय होंगे। अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, तो वो वहाँ की ओर चले जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की कहानियाँ आपने अपने आसपास के गाँव में, आसपास के एरिया में सुना है कि मैं सभी की बात नहीं कर सकता हूँ, कुछ गाँव अभी भी अब बहुत अच्छे हैं, कुछ जगहों पर हॉस्पिटल्स बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों की कंडीशन ख़राब है। ओके, तो ये था, थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। नाउ वी लर्न मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population much less in the rural areas. तो अधिकतर डॉक्टर जो हैं वो अर्बन एरियाज में ही बसे हुए हैं या सेटल्ड हैं। गांव में या गांव के लोगों को काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आना पड़ता है। अगर वो बीमार हैं तो शहर के डॉक्टरों को ही उनको दिखाना पड़ता है, ठीक है। देन अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। ये पुराना आंकड़ा हो सकता है कि लगभग 5 लाख लोग जो थे वो पहले मर जाते थे ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से, क्षय रोग से, ठीक है। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज, ये अभी तक अनचेंज्ड है, ठीक। सिंस इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट 2 मिलियन केस ऑफ द मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल आप देखते हैं कि 20 लाख जो केसेज हैं वो मलेरिया से आते हैं, ठीक है। एंड दिस नंबर इज डिक्रीजिंग, और ये कम नहीं होता है। अभी आप देखेंगे कि चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, कुछ दिनों के बाद फिर डेंगू, मलेरिया, इसका ज़्यादा क्या होगा, रोल बढ़ने लगेगा, ठीक है। जैसे बरसात आएगी तो उस समय और सिचुएशन ज़्यादा खराब होगी। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% of the communicable diseases are waterborne, for example diarrhea, worms and hepatitis. So we all know about that, okay, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो सब अधिकतर क्या होती हैं, पानी से ही फैलती हैं, ठीक है, जिसमें डायरिया है, वॉर्म्स है और हेपेटाइटिस है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नॉरिस्ड। अधिकतर बच्चे जो हैं, जितना हम खाना बर्बाद करते हैं ना, उतना खाना उनको नसीब भी नहीं होता है, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे जो हैं उनको भूख की वजह से, आम के स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए वो कुपोषित होते हैं, अंडर नॉरिस्ड होते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो enough for today. Thank you very much.